Yes. Good morning, my dear students. Today we have started a new topic, that is asexual reproduction in plants. Students, as we know that in yesterday we have discussed about the types of flowers, sexual reproduction. Now the term asexual reproduction. What is asexual reproduction? In asexual reproduction, there was no need of two parents. Two parents means male and female. In that, there is no fertilization process occurs. No fertilization process occurs, then no zygote is formed, no seed is formed. First of all, asexual reproduction can be done through different methods. In that, it can be grow a new plant, new young ones through their body parts. Okay, students, in that process, it is same as it is parent's body. Okay, students, now the some common methods of asexual reproduction in plants are कौन से हमारे? That first is vegetative propagation and vegetative reproduction, fission, budding, vegetative fragmentation and spore formation. Okay, students, these are the points we have understand in asexual reproductions in plants. Let's start. The first point is the vegetative propagation and vegetative reproduction. What is vegetative propagation? Students, plants can multiply through their body parts, stems, roots, leaves, etc. बेटा न्यू प्लांट्स का बन जाना बिना सीड से, वो हमारी वेजिटेटिव प्रोपगेशंस रहेगा. वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में बात करेंगे तो ये कई सारे बॉडी पार्ट से नया प्लांट्स बना देंगे. जैसे कुछ होंगे वो स्टेम से अपना जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ ऐसे हैं कि जो लीव से कर लेंगे, कुछ ऐसे हैं जो रूट से कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दैट द टर्म इज एक्सिलरी एंड लैटरल बर्ड्स. Axillary and lateral buds means the present at the axis of leaves. In axis of leaves, these buds may be grow into the leafy branches. Some birds may grow into the flowers में हो जाएंगे. Okay students, now the flower में हो जाएंगे, that is known as florer or flowing birds. और जो हमारे branches में हो जाएंगे, that is known as vegetative birds. Okay students, now understand. Now we move forward the vegetative propagations with the help of roots. Roots की बात करेंगे. Roots से कौन कौन कर पाए? Roots के लिए sweet potato, dahlia plants. These roots store food. इसमें store food भी होगा, but bear buds. Buds means किल्ला भी निकलेगा, जिससे new plants जो है वो grow हो जाएगा. तो these are the vegetative propagation through roots. इनके roots कुछ दिन के लिए अगर सॉइल में लगा दो तो ये न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो अप कर लेंगे. सेकेंड वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम्स. स्टेम्स की बात करेंगे तो स्टेम्स में हमारा कौन आएगा? स्टेम्स में ग्रास, मिंट, स्ट्रॉबेरी. देखो बेटा स्टूडेंट, दीज आर द स्ट्रॉबेरी प्लांट. देखो बेटा यहाँ पे ये क्या था? स्टेम थी. स्टेम जो है जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ से क्या होने लगेगा? ये रूट्स ग्रो होने लगेंगे एंड आफ्टर सम टाइम इट can grow a new plant. It can help for a multiplication in plants. Okay students, now next one is by underground stem. In underground stems, see the diagram. These were the rhizome in ginger, corm in colocasia, bulb in onion, tuber in potato. But students, these all are the reproductive stems. Stems से grow हो जाएंगे. कैसे ग्रो हो जाएंगे? स्टेम्स में आई जो है, दिस इज अ बर्ड एंड दिस इज आई. स्टूडेंट्स, आपने पोटैटो देखा होगा, कुछ टाइम अगर पोटैटो रखा रहता है तो उसमें बर्ड्स निकलने लगते हैं. बर्ड्स आपने सभी देखी, तो वो ग्रोइंग कंडीशन में है. तो इसी तरीके से जब पोटैटो को हम जो न्यू प्लांट्स में ग्रो करेंगे तो वो थ्रू देयर बर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ
ये एग्जाम्पल्स बेटा आपको याद रखने हैं सारे। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आर्टिफिशियल्स भी कुछ करेंगे। आर्टिफिशियल में क्या करेंगे, जो स्टेम है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी स्टेम, जैसे रोज है, उसकी स्टेम ऐसे ही तोड़ ली और उसको डायरेक्टली सॉइल में लगा दिया और वो हमारा क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम द बर्ड ऑल्सो कम। देखो बेटा, लेट्स से दिस इज अ रोज इन प्रोपगेटेड बाय द स्टेम कटिंग, दिस इज बर्ड एंड स्टेम हमने कट करके लगाया, कुछ टाइम बाद इसमें रूट्स भी आ जाएगी, देन लीव्स भी आ जाएगी, देन इट वाज ए बियर्स अ न्यू प्लांट। ओके स्टूडेंट, दिस वाज द आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड है स्टेम कल्टीवेशन का, ओके, स्टेम कटिंग का। नेक्स्ट वन इज लेयरिंग। व्हाट इज लेयरिंग? प्लांट्स along with the slender branches like जैस्मिन है, ग्रेप्स है, इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैच्योर स्टेम है, वो मैच्योर स्टेम को कट करके थोड़ा सा सॉइल के साथ इसमें कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो भी पेरेंट से कनेक्टेड रहेगा। आफ्टर सम टाइम इट ऑल्सो बियर्स रूट्स एंड न्यू प्लांट्स ग्रो अप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब कट करके लगा देना। नाउ लेट्स सी, कट करके एक पौधा है जो कि क्या करेंगे, उसका ऊपर हिस्सा अलग लगाएंगे, जिसको हम ये फ्लावरिंग प्लांट्स में मोस्टली करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में मोस्टली करते हैं, क्या करते हैं, जो वाइल्ड प्लांट है जिसका ये बेसिस बहुत मजबूत है, जो वाटर एब्जॉर्बिंग एंड अदर न्यूट्रिशन बहुत हेल्पफुल है, उसके वो क्या करेगा, इसको खाना प्रोवाइड करेगा, सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। बाकी जो ऊपर लगेगा वो फ्लावरिंग प्लांट, अलग अलग प्लांट्स फ्लावर के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रोज का प्लांट है, कभी पिंक है, कभी कुछ और कलर, नए कलर्स को बनाने के लिए, नए फ्लावर्स को बनाने के लिए ये नया पौधा ग्राफ्टिंग कर लेते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, यहाँ से वी शेप में कट करते हैं और इसको, ये देखिए वी शेप में कट किया एंड इसके बीच में इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद गनी बैग से इसको टाइट बांध देंगे, टाई अप कर लेंगे। फिर नाउ द व्हाट इज स्टॉक एंड स्टेम, जो बेटा ये पहले से ही जो प्लांट है जो रूट के साथ अटैच्ड है, दैट इज अ स्टॉक, एंड जो नया प्लांट का तना जो हमने लगाया है, दैट इज स्केन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट these are the stalk and stem. Next is vegetative propagation by special buds on leaves. बेटा अब कुछ leaves हैं जैसे bryophyllum, this is the leaf of a bryophyllum. इसमें क्या होगा, इसमें ऑलरेडी लीव से ही न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो अप होने लगेंगे। जैसे ही ग्रो अप होने लगेंगे कुछ टाइम बाद ये रूट्स आ जाएंगे इसमें, और ये सॉइल के कांटेक्ट में आते ही नया प्लांट अपने आप से लीव से ग्रो हो जाएगा। तो दैट वाज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्पेशल बर्ड्स थ्रू द लीव्स, दैट इज अ ब्रायोफाइलम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी स्टॉप today's discussion. Students, read carefully and tomorrow we will understand about the sexual reproduction by the fusion, budding, spore formation, etc. Okay students, have a nice day.